Hi Sumit, welcome to this feedback session. How are you doing today? It's well, sir. It's good. And how are you? I'm doing good. Yeah. Thank you. So for the viewers who are watching this video, we have Mr. Sumit with us today. He has recently completed his multi-track training program here at iMedita, and he got job opportunity with Hitachi as a network engineer. So today in this session, we are going to discuss about his experience during the training program, what kind of preparation approach he took for his interviews, and how much time he spent here in the classes, what kind of approach he took for his overall learning. So, hi Sumit, welcome again, and let's get started. So, first of all, many heartiest congratulations for getting Thank you, sir. a job with Hitachi as a network engineer. So, how are you feeling? कैसा लगता है? It's like good and it's more challenging because I am basically from commerce students. So that's why it's a second company. But actually I also little bit nervous because this is my new things. It's New happened. opportunity, right? Right. So, can Yeah. you quickly give us a quick introduction about yourself, your background into the IT industry? Okay. So basically, I am from Pune. My name is Sumit Nikam, and I have done for PGDM and MPBA. And recently, 2024, I joined I am a data course, and actually, I am starting for this step-by-step learning in the networking domains. Just like a CCNA, it's a 3 4 months we have to done, and then CCNP, and as well as we have to just go pursuing for Palo Alto course. This is the more challenges because we have just 3 4 hours give the time for lab activities we have to done and just know about the what is the your things which have to you go on the your network domains. So Right. that's and my previous company actually it's called finance company, so took more challenges for the understanding in your network domains. Right. And you were also working in networking earlier, right? Yes, Okay, great. So, you mentioned that you enrolled for this training program, I think 10 months back, 1 year back, and you have done a lot yes. of rigorous learning, rigorous training. So, on a daily basis, how much time you were spending here in iMedita? Actually, my class was starting it's 12 o'clock, and then 2 hours in a training session. Then after we have to decide for 6 7 hour maximum time in spent in a lab. Actually, we have to 4 hours in a lab work with practicals in CCN and CCNP likes. So, 4, 5, 6 hours every day you were spending minimum. Yes, yes, Great. And during the training program, you got all the required training material assistance from the trainers as well and from our team. yes, sir. So, how was the overall experience during the training program? Actually, all or it's good. Actually, the AMData given the opportunity for the new student learning for the we have to background like commerce, arts students, yeah, another domains we have to provide supports, and we have to mentally and they have to any kind of things which is happened like any further case like I'm a commerce like students. I do not have any abilities for the how to work with network domain, how to work with going in this domain. So they will provide mentally and physically supports. Like they provide a lot of activities in lab. They provide notes and sessions in just like PD classes and interview PD preparation classes. classes and yes, preparation classes. So you attended your classes from which all trainers? किस किस ट्रेनर से आपने Yes, क्लासेस sir. अटेंड की? Like सुधांशु सर, बलदेव सर and विकास सर से और पीडी की क्लासेस आई फॉरगॉट हर नेम श्वेता बट श्वेता मैडम। श्वेता मैम से मैंने पीडी की क्लासेस अटेंड तो कैसा की. एक्सपीरियंस रहा इन मल्टीपल ट्रेनर्स के साथ आपका? देन मोर कॉन्फिडेंस ज्यादा आ गया उस चीज में कि जो श्योरिटी नहीं थी वो मिल जाएगी, मिल राइट। रही थी एग्जैक्टली. सीसीएनए आपने स्टार्ट किया सुधांशु सर की क्लासेस से, तो उनके साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? It's going so well, and they help me about actually what is the concept is basic. They clear all the things in CCNA. Then after we have to going to CCNP course, but they will help you basic understanding for CCNA likes routing.
व्हाट मेड यू डिसाइड टू डू योर कोर्सेज फ्रॉम आई मेडिटा? बहुत सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हैं और बहुत भी अकेडमीज हैं जो सिमिलर काइंड ऑफ कोर्सेज ऑफर करती हैं। व्हाट मोटिवेटेड यू, व्हाट पुश्ड यू कि आपको ये सारी क्लासेस आपकी आई मेडिटा से ही करनी है? क्या रीजन रहा आई मेडिटा को सेलेक्ट करने के लिए एक्चुअली आपके एंड से? 2014 के पहले जो मैंने बहुत सारी चीज़ें चूज की कि इंस्टीट्यूट देख लिए थे, बट एक्चुअली आई रियलाइज फॉर यहाँ पे लैब बहुत बड़ी है। 2014 और 2024? 2024 के ओके पहले, ओके ओके। मतलब लाइक 23 के आसपास। सो मुझे ऐसा नहीं लगा कि लैब बहुत बहुत इंस्टीट्यूट में कम है, और डो नॉट प्रोवाइड फॉर इन लाइक मैकेनिज्म थिंग्स लाइक नोट्स प्रोवाइड नहीं कर रहे थे, जॉब गारंटी की ये सारी चीज़ें वहाँ पे नहीं थी। और वहाँ पे सिर्फ 2 मंथ का सीसीएनए था, यहाँ पे 3 मंथ से ज़्यादा है, क्योंकि वो पूरी डिटेल में सिखाते हैं एमडेटा वाले। और वहाँ पे कुछ चीज़ कम हो गई, तो मतलब कुछ अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट नहीं हो तो वो प्रॉपरली डिटेल से 1 बाय 1 करके सिखाते हैं, इसलिए एमडेटा में लग। ओके, सो यू मीन टू से आपने अलग अलग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस में जाके देखा एंड यू कंपेयर्ड एंड देन यू फाइंड कि शायद आपकी यस, रिक्वायरमेंट के लिए आई मेडिटा फिट्स द राइट रोल। राइट सर। Okay. And I'm sure when you enrolled here, before enrollment, there must be certain expectation. हर किसी की expectations होती हैं। आपके माइंड में भी जब आपने कोर्स स्टार्ट नहीं किया होगा, there must be certain expectations. Today, when you have completed your course, आपने पिछले 6 7 8 महीने में rigorous learning की, intensive learning की, अपने आप को ready किया in terms of industry, in terms of technicalities, in terms of technology, and in terms of interviews. Now, व्हेन यू वर एनरोलिंग हियर, जो आपकी एक्सपेक्टेशंस थी और आज जब आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया, तो आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड फ्रॉम योर एंड, क्या हमारी कंपनी, हम आपकी उन एक्सपेक्टेशंस को मीट कर पाए जो पहले थी? अ, जब मैंने आईएमडेटा ज्वाइन करा, मेरे को लैक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था, और इंफॉर्मेशन ज़्यादा नहीं थी, कैसे होगा, कैसे कंप्लीट हो जाएगा ये सारी चीज़ें। सो जैसे जैसे कोर्स बढ़ते गया, ट्रेनिंग सेशन बढ़ते गए, देन आई हैव मोर कॉन्फिडेंस इन माई सेल्फ, एंड देन मैंने ये चीज़ें रियलाइज़ की कि हम भी नेटवर्क डोमेन में काम कर सकते हैं, एग्जैक्टली नेटवर्क सिक्योरिटी में काम कर सकते हैं, मोर कॉन्फिडेंटली इंटरव्यू दे सकते हैं। और ऑलरेडी मैं अटेंड फॉर, इट्स लाइक टफेस्ट इंटरव्यू मैंने क्रैक किए हैं बहुत सारी चीज़ें। सो मुझे ये लगता है कि जैसे ट्रेनिंग पर सर प्रोवाइड करते हैं हमारे, तो वी हैव टू जितना हम हो सके 100% अपने वो दे सके। राइट। ऑल्सो आई वुड लाइक टू नो, आपको यहाँ पे क्या 2 से 3 चीजें अच्छी लगी जो आपको लगा कि ये स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ट्रेनिंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अच्छी लगी? एज पर लाइक जो एमिडेटा के सर जो प्रोवाइड करते हैं, जो नोट्स उनके टेक्स्ट बुक है या उनके वर्क बुक्स है, जो जस्ट लाइक फॉर जैसे लैब बुक है, तो उससे हमें मोर कॉन्फिडेंस प्रोवाइड होता है कि जो बाद में हम ज्वाइन कंपनी XYZ कंपनी ज्वाइन होने के बाद भी हमें वो लगता है कि जो मटेरियल मिला है उनसे हम आगे बढ़ सके। तो ये एक बेसिक फर्स्ट थिंग थी। दूसरी चीज़ है मोटिवेशन, कि जैसे ही हम ज्वाइन होते XYZ, तो वो ऐसे नहीं कि जैसे मतलब हम एक कंपनी में ज्वाइन हो और वो छूट गया हम डेटा, ऐसे नहीं है। बाद में हम अगर कुछ हुआ था, जैसे बेसिक चीज़ें हम भूल गए या कुछ चीज़ें, तो हम जाके सर से मिल सके। तीसरी चीज़ ये है कि हमें सिक्योरिटी फील होती है यहाँ पे एम डेटा से ज़्यादा। ओके। ग्रेट। और अभी पिछले 1 2 महीने में आपने अपने इंटरव्यू प्रोसेस स्टार्ट किए, तो किस तरीके से आपने इंटरव्यूज के लिए प्रिपरेशन अप्रोच बिल्ड की? क्या स्पेसिफिक फॉलो किया? कितने इंटरव्यूज दिए आपने? एक्चुअली सबसे ज्यादा तो आपने हेल्प की, तो थैंक यू फॉर गिवन इट्स द इंटर द इट्स ऑल योर अपॉर्चुनिटी। इट्स ऑल योर एफर्ट्स, इट्स ऑल योर एंड डेडिकेशन। या बट जो रास्ता तो आपने बता दिया था, तो थैंक यू। उसके हिसाब से मैंने चला। एंड वी हैव टू लर्न मोर थिंग्स फॉर इंटरव्यू, बिकॉज द नॉन टेक्निकल से टेक्निकल करना थोड़ा सा आसान नहीं रहता हर पर्सन को। तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया, और ऐसे कभी लगता ना, लग नहीं रहा था कि मैं टेक्निकल दे पाऊंगा। बट आपने अप्रोच से और आपके जो मोटिवेशन थिंग्स थी, इसलिए मैं आज यहाँ पे खड़ा हूँ। ओवरऑल कितने इंटरव्यूज दिए आपने पिछले 2 मंथ्स में अप्रॉक्स? लास्ट
18 इंटरव्यू दिए थे, तो उसमें से मैंने 4 ग्रैब कर लिए थे, बट अनफॉर्चुनेटली जो चेन्नई लोकेशन था उसके लिए मैं एलिजिबल नहीं हुआ, बिकॉज वहाँ पे जो सारी टर्म कंडीशन राइट। थी वो वहाँ पे मैं कैपेबल नहीं था उस चीज़ से। एंड यू फाइनलाइज हिटाची, राइट? क्योंकि वो आपको हिताची। लगा कि आपके राइट। लोकेशन कंसिडरिंग ऑल द पैरामीटर्स, यू फाइंड यस। के वो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। ग्रेट। राइट सर। मटेरियल, क्या कोई आपने स्पेसिफिक मटेरियल फॉलो किया इंटरव्यूज के लिए? जो आपको नोट्स मिले, रिकॉर्डिंग्स, या जो आपने मेहनत की ड्यूरिंग द कोर्स, वही सफिशिएंट रही? एग्जैक्टली सीसीएनपी और सीसीएनए के जो नोट्स प्रोवाइड करे थे एमलेट से, बेसिकली वी हैव टू फॉलो देम, एंड एज वेल एज वी हैव टू जस्ट लाइक अ फायरवॉल, तो बल्लभ सर ने हेल्प किया था हमें, तो कि वो कैसे टैकल करना है इंटरव्यू के लिए, उनकी प्रिपरेशन बहुत मेहनत रंग लाई एग्जैक्टली फॉर इंटरव्यू प्रिपरेशन, फॉर व्हाट काइंड ऑफ आस्किंग द इंटरव्यूअर क्वेश्चंस तो एंड हाउ इंटरव्यू, टू टैकल देम। व्हेन यू से इंटरव्यू प्रिपरेशन क्लासेस, तो उसमें क्या रहा, क्या अप्रोच रही सर की, ताकि आप Exactly, प्रिपेयर कर basic पाए? to actually that is the basic the fundamentals we have to clear them first, and then we have to go to the scenario based questions. Also, we have to suppose the into technical round two. So we have to asking for say technical question more than just like fundamentals. हम्म। So वहाँ पे मेरे scenario based question clear हो चुके हैं, ओके। तो इजी वे ये हुआ कि इंटरव्यू निकालना आसान हो चुका। ओके। ग्रेट। एंड व्हाट मैसेज, व्हाट सजेशन यू वुड गिव टू समबडी who for students who are planning to give their interviews? क्या सजेशन दोगे उनको आप कि क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करें, कैसे मोटिवेटेड रहें? एक्चुअली फर्स्ट ऑफली कुछ रिजेक्शन आता है तो डरो मत, आपसे बात करें एग्जैक्टली क्या हो रहा है एग्जैक्टली इंटरव्यू में, कहाँ हम कम पढ़ रहे हैं, मतलब एग्जैक्टली कुछ फंडामेंटल्स क्लियर नहीं, इट शुड टू थोड़ा सा उस पे ध्यान दो, जो हमारे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है, जैसे कि स्विचिंग ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है बहुत सारे लोगों के, तो यू शुड टू ट्राई टू राउटिंग, जैसे राउटिंग के प्रोटोकॉल से वहां पे ज्यादा ध्यान दो, मतलब बीजीबी थोड़ा सा मुश्किल है करना अंडरस्टैंडिंग, कि आज के इंडस्ट्री में बहुत कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स है कि वहाँ पे एग्जैक्टली कैसे वर्क होता है, तो हम्म। वो एक्सप्लेन इंटरव्यू को करना थोड़ा सा आसान नहीं होता, जैसे कि फायरवॉल भी है, तो एग्जैक्टली वहाँ पे सीनियर की मदद लो, जैसे सर है, बहुत सारे सीनियर पर्सन है वहाँ पे जो ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं या सिखा रहे हैं, तो उनसे ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प लेके आगे बढ़ो, ग्रेट। यही सजेशन रहेगा। एंड बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस हियर एट आई मेडिटा, आप हमारी ट्रेनिंग एंड सर्विसेज को क्या रेट करोगे आउट ऑफ 10? एटलीस्ट 10 देना चाहूंगा। Okay, thank you. या And any suggestion, any feedback for us through which we may improve our training and services in future? कोई भी आपका suggestion? सजेशन एक्जेक्टली जैसे जैसे नए टेक्नोलॉजी आते हैं, सो इनबिल्ट होना पड़ेगा, वैसे भी स्टूडेंट को भी होना पड़ेगा, क्योंकि नए चीज तो हैंडल करनी पड़ेगी, सो सजेशन रहेगा कि वी हैव टू अपडेट योर सेल्फ एंड Great. थिंग्स। Thank you, Sumit. Thank you for giving us your valuable time. We wish you all the very best for this new journey, new career endeavors, and all the best. Thank you again for giving us your valuable time. या थैंक यू।